الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قابل احترام सदर मजलिस व मस्जिद हफिज़हुल्लाह व रआ व मुहतरम व मुअक्कर उलमाए दीन मुअज़्ज़ज़ हज़रात, नौजवानों, प्यारे बच्चों और मुअज़्ज़ज़ बच्चियों, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब से पहले अक़ीदे के मौजू पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर कुछ अहम बातें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को सामने रखकर हमने गुफ्तगू की। और हमारा दूसरा टॉपिक है இரண்டாவது முக்கியமான தலைப்பு எந்த மன்ஹஜை, எந்த வழியை இன்றைய காலத்தில், குறிப்பாக குழப்பங்கள் நிறைந்த இந்த காலத்தில் எந்த மஸ்லகை, எந்த வழிமுறையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற இந்த கேள்விக்கு ஆதாரபூர்வமான இன்ஷா அல்லாஹ் தீர்வு, பதில் உங்களுக்கு மத்தியில் வரலாற்று ரீதியாக இன்ஷா அல்லாஹ் எடுத்து வைப்பதற்கு முயற்சி செய்வேன். முதலாவது, கவனமாக பாருங்கள், இதை உங்களுடைய நோட்டில் நீங்கள் பதிவு செய்யுங்கள். ஆரம்பமாக உங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு ஹதீஸை நான் எடுத்து வைக்கின்றேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை மண்ணில், தரத்தில் ஒரு நேரான ஒரு கோட்டை போட்டார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வலது புறத்திலும் இடது புறத்திலும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பல கோடுகளை போட்டார்கள். பாருங்கள், ஒரு நேரான ஒரு கோடு இருக்கின்றது. இந்த கோடு, இதை பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் தெளிவான முறையில் கூறினார்கள், ஹாதா சபீலுல்லாஹ், இது அல்லாஹ்வின் பாதை, இது சொர்க்கத்தின் பாதை, அல்லாஹ்வின் பொருத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய பாதை. பல கோடுகள் இருக்கின்றன. இந்த கோடுகளை பற்றி அல்லாஹ்வின் தூதர் கூறினார்கள், இது ஷைத்தானின் பாதைகள். குர்ஆனுடைய அடிப்படையில் நாம் கூறும் பொழுது இது ஷைத்தானின் அடிச்சுவடுகள். ஹராமான பாதை, உங்களுடைய ஹராம் பிசினஸ், உங்களுடைய மனோ இச்சை, நீங்கள் வாழ்க்கையில் பின்பற்றக்கூடிய பிதஅத்தான விஷயங்கள், ஈமானில் ஏற்படும் சந்தேகங்கள், நீங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய அநியாயங்கள், ரப்பிற்கு மாறு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள், அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். ஷைத்தான் இந்த பாதைகளை கொண்டு இந்த நேரான வழியில் செல்லக்கூடிய மனிதனை, முஸ்லிமை அழைக்கின்றான், வாருங்கள் 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 என்று. आओ आओ आओ, ये क्या है? ये अल्लाह का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले दोस्तों, तन्हाई में अभी शुक्रिया का सजदा करना। आप क्यों जानते? इतने फितने, इतने फितने, इतने फितने
फिर भी अल्लाह ताला फितनों से बचाया है मुझे और आपको। इस पेशानी को तौहीद की तौफीक मिली है, इन आज़ा को सजदा करने की तौफीक मिली है। अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी को जिन बिदातों में, जिन खुराफात में, जिन गलतियों में हम बस्ती वालों को देखते हैं ना, मालूम है ये गलत है, दीन के नाम पर ये बहका रहे हैं, फिर भी अल्लाह ने आपको बचाया है ना, वल्लाही सजदे शुक्र बजा लाओ। जरूरी है आज शुक्री तदूमुन नियाम। உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த அருட்குடை நிரந்தரமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டும். நன்றியின் மூலம் நாம் என்ன செய்யலாம்? இந்த அருட்குடையை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். ஒரு பெரிய சோதனை, சவால், சேலஞ்ச் என்னவென்றால் இதுதான். உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த மன்ஹஜ், இந்த ஏகத்துவம், இந்த ஓரிரை கொள்கை, இதை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்கிறீர்களா? உங்களுடைய கவனத்தில், கவலையில் இந்த மன்ஹஜ் தௌஹீத் இருக்கின்றதா? இல்லை, இல்லையா? பாருங்கள், இந்த सबीलुल्लाह, இது அல்லாஹ் का रास्ता मुझे और आपको मिला है. தவறான அமைப்புகள், மார்க்கம் என்ற பெயரிலே ஷைத்தான் என்ன செய்கின்றான்? தவறான அமைப்புகளை உருவாக்கி அந்த தவறான அமைப்புகளின் பக்கம் உங்களை அழைக்கின்றான். வாருங்கள் 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 என்று. அல்லாஹ்விற்காக கவனமாக கேளுங்கள். குறிப்பாக இளைய சமுதாயமே, இளைஞர்களே கவனமாக கேளுங்கள். மார்க்கம் என்ற பெயரில் தவறான அமைப்புகள் இருக்கின்றன. அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். அந்த அமைப்புகளுக்கு நீங்கள் ஒத்துழைப்பை கொடுக்காதீர்கள். இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் மன்ஹஜ் என்றால் என்ன? இப்பொழுது நான் இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களுக்கு மத்தியில் தெளிவான முறையில் எடுத்து வைப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வுடைய பாதை இதுதான். சபீலுல்லாஹ், ஹக், சத்தியம் நிறைந்த பாதை இது. அசத்தியம் கிடையாது இதில். இதுவும் உண்மை, இதுவும் உண்மை என்று கிடையாது. சத்தியம் ஒருதான். இதுவும் சத்தியம், இதுவும் சத்தியம் கிடையாது. இதற்கும் அனுமதி இருக்கின்றது, இதற்கும் அனுமதி இருக்கின்றது என்று நீங்கள் கூறலாம். இதுவும் சத்தியம், இதுவும் சத்தியம் என்று சொல்ல முடியாது. இது கொள்கையின் ஒரு உண்மை. இது சுப்ஹானல்லாஹ் மன்ஹஜின் ஒரு உண்மை. இதுவும் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம், இதுவும் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்று நீங்கள் கூறலாம். ஆனால் இதுவும் சத்தியம், இதுவும் சத்தியம் என்று சொல்ல முடியாது. குல் ஜாஅல் ஹக்கு வ ஸஹகல் பாतिल. ऐ नबी आप कह दीजिए हक आ गया है और बातिल अब फना होगा. बातिल को मिटना है, बातिल को दफन होना है. तो गोया के ये जो हक है ना, वो एक है. हाँ, अमल करते हुए मौलाना इसकी गुंजाइश है क्या? हाँ भाई, एक हदीस है, उस हदीस के बारे में उलमा ने इख्तिलाफ किया है. ये हदीस हसन है और वो हदीस सही है. हसन है, सही है, दोनों हदीसें सही हैं. आप इस पर भी अमल कर सकते, उस पर भी अमल कर सकते, ये बोल सकते आप. ऐसे बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं. लेकिन जब हक की बात आएगी, जब बेसमेंट की बात आएगी, वहां नहीं. क्या मौलाना अल्लाह के नबी गैब जानते क्या? नऊजुबिल्लाह, अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते, ये जो है बात भी सही है. इंद करुत्तुम सहीहानदु, अल्लाह के नबी गैब जो है यानी जानते, इंद करुत्तुम सहीहानदु. ऐसा नहीं होता मेरे भाई. अकीदे के मसले में ऐसा नहीं होता. अकीदे में हम गलती करते हम. इसीलिए आप देख लीजिए, जिनका अकीदा कमजोर रहता ना, யாருடைய கொள்கையில் பலவீனம் இருக்கின்றதோ அவருடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் படித்து பாருங்கள். उनके पास एक ठिकाना नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, सब उसे हमारी जबान में बोलते मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू.
मीठा रहे तो अच्छा है माशाल्लाह ले लेते, कड़वा रहे तो छोड़ा देते। जहां जहां जो अपने नफ्स की बात आती ना, हाँ ये सही है, देखो मेरे नफ्स के सिलसिले में बात करते, हाँ यहां पर ख्वाहिश छोड़ना क्या, हमारे बाप दादा के रस्म को छोड़ना क्या, नहीं नहीं, अब एक रास्ता देखते हैं। हाँ ये कर सकते क्या मौलवी साहब, हाँ कर सकते, हाँ ये सही है। नहीं अल्लाह के बंदो, दीन इसका नाम नहीं है। हमने वल्लाही दीन को गलत समझ लिया है। दीन ऐसा नहीं है, समझ लो आप अपनी ख्वाहिशात पर दीन को कायम मत कीजिएगा, दीन पर अपनी ख्वाहिशात को कायम कीजिएगा, आप कामयाब रहेंगे। आप पहले ख्वाहिश कर लेते, फिर वो ख्वाहिश को लेकर जाते, बोलो नहीं नहीं ये सही ख्वाहिश नहीं है, नहीं तुम्हें सही नहीं, तुम्हें बोलो जी नहीं ये ख्वाहिश सही नहीं, तुम्हें भी सही नहीं, आप बोलो हाँ चलता, परवाह नहीं, कर ले सकते, हाँ इनो बराबर है कि नहीं। अब ख्वाहिश को लेकर जाते हैं साहब, ऐसा नहीं जाना, पहले सही दीन सीखो, उस सही दीन को अपनी ख्वाहिश को जो है वहां लेके जाओ। वो दीन अगर कह रहा है ये ख्वाहिश गलत है, अल्लाह की खातिर जमीन में दफन कर दो उसे, कभी उसे खोदो ना को, आप उठाना को फिर दोबारा। ये मुसलमान है ये। और हमारे सहाबा अल्लाह की कसम ऐसे ही थे, ऐसे ही थे हमारे सहाबा। आज देख लो आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता, कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते ना, इमाम आलिम साहब से क्या सुनना नहीं चाहते आप पहले से क्रिएट कर लेते ये जायज करके, अब वहां जाके पूछते। अब आलिम साहब अगर नाजायज बोल डाले ना, वो आपके पास नाजायज, वो इमाम आपके पास नाजायज। जो इमाम आपके जायज को जायज बोल दे, वो इमाम आपके पास जायज। ऐसा सुना जी हमें जिंदगी गुजारते और फिर भी बोलते कि माशाअल्लाह मौलाना हमारी आवाज कुरान है, हमारी आवाज सुन्नत है, लेकिन आवाज में दम नहीं है, आवाज में दम नहीं है। ये दम कहां से पैदा होगा? आपकी अमली जिंदगी से पैदा होगा। ये लाना हम, इसीलिए चुप ऐसे ही नहीं मेरे भाई, ये सबीलुल्लाह चुप के नहीं बोलते हम। अल्लाह के रास्ते पे पहले आप खड़े हो जाओ। शैतान की मक्कारियां, शैतानिன் சூழ்ச்சிகள் அதை நீங்கள் முதலில் அறிந்து கொள்ளுங்கள், அதன் பிறகு முற்றிலும் அந்த சூழ்ச்சிகளில் இருந்து நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த உண்மையான கல்வி உங்களை பாதுகாக்கும். குர்ஆன் சுன்னஹ் உங்களை பாதுகாக்கும். குர்ஆன் சுன்னஹ் உங்களை பாதுகாக்கும். உலமா பெருமக்கள், சத்தியம் நிறைந்த உலமா பெருமக்கள், வல்லாஹில் அஸீம், இந்த பூமியில் சத்தியம் நிறைந்த உலமாக்கள் அல்லாஹ்வின் மூலம் அருளப்பட்ட அருட்கொடை. யாருடைய நாவில் சத்தியம் வருகின்றதோ அவர்கள் மக்களை சுப்ஹானல்லாஹ் அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள்? தவறான வழியின் பக்கம் அவர்கள் கொண்டு செல்ல மாட்டார்கள், தங்களுடைய மனோ இச்சைகளுக்காக. இவர்கள் தான் சத்தியம் நிறைந்த உலமாக்கள், உலமாஉல் ஹக், அல் உலமா அர்-ரப்பானியூன் அர்-ராசிகூன ஃபில் இல்ம் வலா யகாஃபூன ஃபில்லாஹி லௌமத லாயிம். ஆனால் நியானத்தோடு அவர்கள் மார்க்கத்தை கொண்டு செல்வார்கள். இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான செய்தி தான். உங்களிடம் சத்தியம் இருக்கின்றது, நீங்கள் சத்தியத்தை எப்படி நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறீர்கள்? அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். எப்படி எடுத்து வைக்கிறீர்கள்? நபியுடைய மன்ஹஜ் கிடையாது. பிறர் மக்களை நீங்கள் மக்களுக்கு மத்தியில் இழிவுபடுத்துகிறீர்கள். समझ रहे ना मेरी बात? जलील करते सबके सामने। हक है माशाल्लाह आपके पास, सुनो बेटे सालिम, हक है आपके पास, लेकिन क्या करते आप? सामने वाले के पास अगर गलती देखे ना, आपकी ख्वाहिश क्या होती? सबके सामने उसका सर झुकना, सबके सामने जलील करना। वो कहां से आपकी बात मानेगा? अरे दोस्तों, इस्लाह ऐसे नहीं होती। हमारे नबी का तरीका क्या था? अगर कोई गलती भी करता ना, अल्लाह की कसम, कभी आप उस गलती करने वाले को उन्होंने ऐसी गलती की आप जिक्र नहीं करते। आप हमारे नबी की सुन्नत क्या है? मा बालु अक़वाम यफ़अलून कज़ा व कज़ा, लोगों को क्या हो गया है, वो ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो गलती करने वाले को एहसास होता मैं गलती कर रहा हूं, और लोगों को मालूम हो जाता ये गलती है। इसीलिए दोस्तों,
अल्लाह ने कुरान में कहा, अभी शायद दावत के सिलसिले में एक दौरा भी हुआ था, अल्लाह ज़ाखैर दे, उसमें ये बात आई होगी, दावत में, इस्लाह में, सामने वाले को समझाने में एक अहम बात क्या है मालूम? अडिपड़ैयान विषयम என்ன என்று தெரியுமா? ஞானம் ஞானம் ஞானம். அந்த ஞானத்தோடு நீங்கள் மக்களை அடையுங்கள். தவறான அமைப்பில் இருக்கக்கூடியவன் அல்லாஹ்வின் மீது ஆணையாக வல்லாஹில் அஸீம் அந்த அமைப்பை விட்டு குர்ஆன் சுன்னஹ்வின் பக்கம் வந்து விடுவான் இன்ஷா அல்லாஹ். ஃபர்ஸ்ட் ஞானம் தேவை. இரண்டாவது அழகான உபதேசம். अड़गान उपदेशम, ऐसी नसीहत तो दिल में उतर जाए, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात. ऐसा अंदाज होना चाहिए आपका कि सामने वाले को महसूस हो आप उसकी जिल्लत नहीं चाहते हैं, आप उसकी आखिरत चाहते हैं. आप दोस्तों यही ना है हमारा मकसद? हम किसी को हम बताते हैं, समझाते हैं, क्या मकसद मेरे भाई? क्या कोई एजेंडा है हमारा पीछे? नऊजुबिल्लाह, कोई काम कर रहा है हमारे पीछे? अरे दोस्तों एक ही मकसद है कि आप और हम जहन्नम से बच जाएं, हिंदुस्तान की सरजमीन में लोग मुसलमान और दूसरे लोग सही दीन पे आ जाएं. यही एक तड़प है हमारी, बस यही हमारी आवाज है, यही अहले हदीस की फिक्र है कि लोग सही दीन पे आ जाएं. मसलक को हम छेड़ना नहीं चाहते, आपके मसलक को वल्लाही छेड़ना नहीं चाहते. अभी हम आपको बताएंगे कि मसलक क्या है और अहले हदीस क्या है, बताएंगे आपको. अभी ये तो समझ लिए ना आप, ये सबीरुल्लाह है, ये अल्लाहविन पादई शैतानिन पादेगल. अब आप सोच के देखिए हम क्या कर रहे हैं. मैंने जो एक मोटी मिसाल दी, हर मैदान में आप उसे लेकर देखो. आप शादी ब्याह के मसले में भी, किसी का इंतकाल हो जाए तो भी, खुशी में गम में हमारे जहन में कुछ सवालात रहते, ये कर सकते नहीं कर सकते बोलकर. लेकिन अक्सर पहले से आप एक राय बना लेते, आप ये कर सकते बोलकर, फिर उलमा से जाते. आप जिस आलिम ने आपके दिल के मुताबिक बात कही उसे आप ले लेते. जिसने दीन की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर आपके सामने कोई बात कही, आप उसे हकीकत में या गौर से सुनो. आपके पास कोई दलील की बुनियाद पर बात कर रहा है, एक पॉइंट देखो, आप उसे नहीं मानते. अब्दुल्ला दलील की बुनियाद पर बात कर रहा है, आप उसे नहीं मानते. अब्दुल रहमान बगैर दलील के बात कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं आप. हकीकत में आपने किसे अपनाया, किसे ठुकराया? आपने किसे अपनाया, किसे ठुकराया? नहीं, अब्दुल्ला को नहीं ठुकराया आपने. अब्दुल्ला को आपने ठुकराया नहीं, आपने अब्दुल्ला की दलील को ठुकराया. कभी सोचा हमने? ऐसे कितनी हदीसों के साथ मजाक उड़ाते हम, ऐसे कितनी हदीसों के साथ लापरवाही का मामला करते हम. अरे मेरे भाई, सामने वाला अगर कोई सही मैसेज दे रहा है आप उसे अपनाओ ना. सामने वाला गलत मैसेज दे रहा है, वो गलती आपको मालूम है, अल्लाह के वास्ते उस गलती का साथ मत दो. आप अल्लाह के पास पकड़े जाओगे. ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, यहां सब हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, और इसलिए अक्ल दिया हमें कौन सही कौन गलत सब जानते हैं. आप अपनी पुरानी ख्वाहिश को लेकर आप मसलक को मत तोलिए और आप मनहज को मत तोलिए. आप एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से गौर से सुनना. நான்கு ஐம்மாக்கள், அல்ஹம்துலில்லாஹ், வரலாற்று ரீதியாக நீங்கள் வரலாற்றை படித்து பார்த்தால்
இந்த 4 இமாம்கள் மட்டும் கிடையாது, மாறாக பல ஐம்மாக்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அவர்கள் மார்க்கத்திற்காக பல தியாகங்களை செய்தார்கள். மக்களை அவர்கள் மார்க்கத்தின் பக்கம் அழைப்பதற்கு பல முயற்சிகளை செய்தார்கள். ஆனால் இந்த 4 இமாம்களுக்கு அல்லாஹ் அந்த சுப்ஹான் அல்லாஹ் இந்த பூமியிலே அவர்களுடைய அந்த மஸ்லகை, அவர்களுடைய அந்த மசாயிலை மற்ற ஐம்மாக்களை நீங்கள் படித்து பாருங்கள். அவர்களை விட இந்த 4 இமாம்கள், 4 ஐம்மாக்கள் மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு இடம் இருக்கின்றது, அவர்களுடைய உள்ளங்களில் ஒரு கண்ணியம் இருக்கின்றது. अल्हम्दुलिल्लाह இல்லையா? चारों ஐம்மா की हम इज्जत करते हैं ना, एहतराम करते हैं ना इंशाअल्लाह। क्यों? बहुत सारे ऐम्मा आए, लेकिन पूरी दुनिया में ये 4 ऐम्मा को हर कोई जानता। इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह, नुअमान बिन साबित आपका नाम है, 150 आपकी वफात है। अब हम कौन सी हिजरी में हैं सालिम? 2020 परचे शुरू ना, मालूम नहीं आपको? जनवरी में ना है, हमें पोंगल की छुट्टी इतना चल लगे सो 2020 परचे। तो हिजरी तारीख क्या, चांद की तारीख क्या है बोलो? हाँ, इमाम ये सिंगुलर है, बारकल्लाहु फीक। आइम्मा प्लूरल है, इमाम सिंगुलर है, आइम्मा प्लूरल है। इमाम तो जानते हैं आप, अच्छा बोलो। 1447 आपका मोबाइल नंबर है क्या? क्या नंबर है आपका? मोबाइल नंबर है ये? क्या है? साल है नहीं ये? माशाअल्लाह तआला, अल्लाह खुश रखे बेटे आपको। सालिम 1447 ये हिजरी की तारीख है। अभी इंशाल्लाह रमजान के बाद ज़िल-हिज्जा में ये तारीख बदल जाएगी, 1448 में दाखिल होंगे। तो इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह 150 में इंतकाल होते हैं, 150 हिजरी में। उसके बाद दूसरे इमाम हैं, उनको मदीने का इमाम कहा जाता है, दारुल हिजरा का इमाम कहा जाता है, इमाम मालिक रहीमहुल्लाह, जो 179 में वफात पाए, 179 इमाम मालिक रहीमहुल्लाह। और तीसरे इमाम हैं, मैं जमाने के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं जमाने के हिसाब से, इमाम शाफिई मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफिई रहीमहुल्लाह। आपका नाम मोहम्मद है असल, इमाम शाफिई मोहम्मद अश-शाफिई, मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफिई 204 में वफात पाया, 204 204 में। और आखिरी इमाम है जिनको इमाम अहली सुन्ना वल जमा कहते हैं। अहलुस सुन्ना वल जमा के इमाम हैं आप, अहलुस सुन्ना वल जमा के इमाम हैं आप। ये चौथे इमाम कौन? इमाम अहमद इब्न हंबल रहीमहुल्लाह, 241 241 240 पर 1 में आप वफात पाया, 241। तो 4 इमाम आ गए आपके पास। पहले इमाम कौन बोलिए बच्चों? अबू हनीफा रहमहुल्लाह। दूसरे इमाम कौन? मालिक रहमहुल्लाह। तीसरे इमाम कौन? इमाम शाफी रहमहुल्लाह। चौथे इमाम कौन? अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह। अब हम मसलक बोलते नहीं, क्या मतलब मसलक का? मसलक का मतलब होता है நீங்கள் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு வழிமுறை, ஒரு பாதை, நீங்கள் பின்பற்றக்கூடிய பாதை, அதற்கு பெயர்தான் மஸ்லக்। மசாயில்களை, ஷரியாவின் பல மசாயில்களை எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பாதையின் பெயர்தான் மஸ்லக்। இப்பொழுது நான் முதலில் உங்களுக்கு மத்தியில் இந்த 4 இமாம்களின் மஸ்லக் என்ன என்று நான் உங்களுக்கு கூறுவேன், அப்பொழுது உங்களுக்கு புரியும் அல்ஹம்துலில்லாஹ்। ஆம், இந்த 4 இமாம்களுடைய மன்ஹஜ் மஸ்லக் எதுவாக இருந்தது, இந்த உண்மை அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும்। பல உலமாக்கள் இதை கூறுவது கிடையாது। ஏன்? இதை கூறும் பொழுது நம்முடைய உள்ளங்களில், கவனமாக கேளுங்கள், நம்முடைய உள்ளங்களில் குர்ஆன் सुन्नाहविற்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்ற உணர்வு ஏற்படுகின்றது। एक जज्बा पैदा होता हमारे अंदर। अब मैं जो बातें बोलने जा रहा हूं ना,
एक एक बात जहन में रखना, आप एक एक बात जहन में रखना। और वल्लाहिल अजीम इन बातों को बयान करने में हम हरगिज झूठ नहीं बोल रहे हैं आपसे। आप चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबें पढ़ लीजिए, आप जो इस्लामिक किताबें आप पढ़ लीजिए, उन किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं, ये हकीकत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकते। इनकार करते हैं तो आइए हम ओपन चैलेंज करते हैं, ओपन चैलेंज करते हैं हम, आइए इनकार कीजिए। मौलाना आपने जो इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह के बारे में कहा, इमाम मालिक के बारे में कहा, इमाम शाफी के बारे में कहा, इमाम अहमद के बारे में कहा, ये झूठ है, आप बताइएगा, हम दिल से कबूल करेंगे। अगर आपने यानी हमारी गलती को गलती बताया तो हम कबूल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात पे भरोसा है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में पढ़ाई हुई, ऐसा नहीं कि हम आपको गलत ग्रेडिंग करेंगे, हमको अल्लाह के पास जवाब देना है हशर के मैदान में। इसलिए यहां बातें गौर से सुनो आप, तब आपको अंदाजा होगा हमें कौन सा मसलक और कौन सा तरीका इख्तियार करना बोलकर। ठीक है ना। सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए। वाकई दोस्तों इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह ने दीन को समझाने और मसाइल को हल करने में आपकी मेहनतें, आपकी कोशिशें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसलिए एक बात मैं आपको बताता हूं, गरचे इल्मी बात है लेकिन जहन में रखिएगा। इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने एक मरतबा इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह की तारीफ करते हुए कहा, अन्नासु इयालुन अला अबी हनीफा फिल फिक़्ह, लोग फिक़्ह के मसाइल में इमाम अबू हनीफा की मोहताज हैं रहीमहुल्लाह की। इतना अजीम मकाम है इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह का। अगर आपकी जिंदगी को हम पढ़ते हैं, ये बात आपने कही इंतकाल से पहले इमाम अबू हनीफा ने ये बात कही रहीमहुल्लाह ने, इदा सह्हल हदीसु फहुवा मज़हबी, इदा सह्हल हदीसु फहुवा मज़हबी। अगर मेरे सामने कोई हदीस सही सनद से आ जाए तो मेरा मजहब है। ஆதாரப்பூர்வமான ஒரு செய்தி, ஒரு ஹதீஸ் யாராவது என்னிடம் எடுத்து வைத்தால் அந்த ஹதீஸ் நான் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு பாதையாக அமையும் என்று தெளிவான முறையில் அபூ ஹனீஃபா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறினார்கள்। அல்லாஹு அக்பர்। இதா ஸஹல் ஹதீஸு ஃபஹுவ மஸ்ஹபி, ஒரு ஹதீஸ் ஆதாரப்பூர்வமான சஹீஹாக யாராவது எடுத்து வைத்தால் அந்த ஹதீஸை நான் பின்பற்றுவேன், அதுதான் என்னுடைய மஸ்லக், அதுதான் என்னுடைய மன்ஹஜ், அதுதான் என்னுடைய மஸ்ஹப் என்று யார் போதித்தார், யார் கூறினார்? அபூ ஹனீஃபா ரஹிமஹுல்லாஹ்। மேலும் அவர்கள் கூறுகின்றார், கவனமா கேளுங்கள், இதா குல்து கௌலா, அவருடைய கருத்து இது, இதா குல்து கௌலன் யுகாலிஃபு கிதாபல்லாஹ் வ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ஃபத்ருகு கௌலி ஃபத்ருகு கௌலி ஃபத்ருகு கௌலி। நான் உங்களுக்கு மத்தியில் ஏதாவது ஒரு கருத்தை எடுத்து வைக்கின்றேன், அந்த கருத்து, கவனமாக கேளுங்கள், அந்த கருத்து குர்ஆனிற்கும் சுன்னாஹ்விற்கும் முரண்பாடாக இருந்தால் அந்த கருத்தை நீங்கள் விட்டு விடுங்கள்। அல்லாஹ் அக்பர்। என்னுடைய கருத்தை நீங்கள் விட்டு விடுங்கள், என்னுடைய அந்த சொல்லை நீங்கள் விட்டு விடுங்கள்। என்னுடைய கருத்து குர்ஆன் சுன்னாஹ்வின் கருத்திற்கு முரண்பாடாக இருந்தால் என்னுடைய கருத்திற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்காதீர்கள், அந்த குர்ஆன் சுன்னாஹ்வுடைய கருத்திற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் கொடுங்கள்। வரலாற்று ரீதியாக இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரஹிமஹுல்லாஹ் சொன்ன ஒரு உண்மையான செய்தி। ஆதாரம் என்ன என்று தெரியுமா? ஆதாரம் என்ன என்று தெரியுமா? ஒரு பிராக்டிக்கல் ஆதாரம் கொடுக்கின்றேன், ஒரு பிராக்டிக்கல் ஆதாரம் கொடுக்கின்றேன், கவனமாக। என்ன ஆதாரம்? அபூ ஹனீஃபா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லையா? இதற்கு ஆதாரம் என்ன? பிராக்டிக்கல் ஒரு ஆதாரம்। இவர்களுடைய இரண்டு மகத்தான மாணவர்கள் யாரு? இமாம் அபூ ஹனீஃபா உடைய ரஹிமஹுல்லாஹ்வுடைய இரண்டு மகத்தான மாணவர்கள், இமாம் அபூ யூசுப் ரஹிமஹுல்லாஹ், இமாம் இல்ல
அப்துல்லா கிடையாது. அபு யூசுப் ஹசன் சரியான பதில். இரண்டாவது இமாம் அபு ஹனீஃபாவுடைய ரஹிமஹுல்லாவுடைய இரண்டாவது மகத்தான மாணவர், அவருடைய பெயர் ஃபர்ஸ்ட் பெயர் அபு யூசுப், சஹீஹான பதில். இரண்டாவது தெரியுமா? முஹம்மத் பின் ஹசன் அஷ்-ஷைபானி. முஹம்மத் பொதுவானது. அபு யூசுப் ரஹிமஹுல்லா, முஹம்மத் ரஹிமஹுல்லா, இந்த இரண்டு மகத்தான மாணவர்களின் வரலாற்றை படித்து பாருங்கள். இவர்கள் அபு ஹனீஃபா ரஹிமஹுல்லா அவர்களுக்கு பிறகு 1/3 कितना 1/3 मसलों में अपने इमाम से इख्तिलाफ किए। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से मुलाकात हुई, दीगर बड़े बड़े मुहद्दिसीन से मुलाकात हुई, अपने मसाइल को उनके सामने बयान किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मसला उस हदीस के खिलाफ है, ये मसला कुरान के खिलाफ है। फौरी तौर पर उन्होंने मसला बदल लिया। मसलक बदला नहीं, मसला बदल लिया। तो मतलब क्या है? हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करें। अल्लाह के बंदो, यहां पर लोगों ने मसलक का ऐसा लेबल लगाया ना, अल्लाह रहम करे, हमारे पास कुरान और सुन्नत की अहमियत नहीं। हमारे पास ये असल बेसमेंट है। आप दीन के नाम पर सामने वाला अगर कोई सही बात बताए, सही अकीदा बताए, उसे अपना लो ना। आप हमेशा खुश रहेंगे आप। और आज के दौर में ऐसी आवाजें कहां आती देखो आप। हम अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं, हमारे इस मिंबर से ऐसी कभी गलत आवाज नहीं निकलेगी इंशाअल्लाह। अगर गलत आवाज निकलती है, आप आकर बताइएगा, हम उसकी इस्लाह कर लेंगे इंशाअल्लाह। है कि नहीं? हो सकता है कोई इमाम गलती करें खुतबे के दौरान, अगर आपको लगे कि उनकी बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, यहां इमाम मोहतरम है और दीगर उलमा है, अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं, हम गलती पे नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। आपकी उस बात को हम दिल से कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। यही तो अहले हदीस का मनहज है दोस्तों। लोग पूछते अहले हदीस क्या कोई फिरका है? क्या ये क्या कोई ये? देखिए, अहले हदीस का एक ही मनहज है। वो मनहज क्या है? जो अल्लाह के नबी सहाबा, अल्लाह के नबी ने सहाबा को जिस मनहज पे छोड़ा ना, उसी मनहज को फॉलो करने वाली जमात अहले हदीस है। हर एक का एहतराम कीजिए आप, हर एक का एहतराम करो आप। सामने वाला गरचे उसका मसलक अलग है, लेकिन उसके दिल में किताब और सुन्नत की रोशनी है, आप उसकी कदर कीजिए आप। यही तो असल है। अबू यूसुफ रहीमहुल्लाह इख्तिलाफ किए, मोहम्मद रहीमहुल्लाह इख्तिलाफ किए अपने इमाम से। क्या वो उनके इमाम के शागिर्द नहीं? क्या वो शागिर्द रहे। 1/3 मसाइल जी, अगर 30,000 मसाइल हैं तो 10,000 मसाइल में इख्तिलाफ किए। आज एक मसला छोड़ने हम तैयार नहीं होते, एक मसला छोड़ने तैयार नहीं होते। मस्जिद नबवी में हम बैठे हैं, अल्लाह के घर में हम बैठे हैं। देखो, हमारे जिस्म के रोंगटे बाल खड़े हुए। क्यों? एक हाजियों की एक जमात है हिंदुस्तान की, हम समझा रहे हैं हज के सीजन में मस्जिद नबवी में बैठकर। अभी मेरी गुफ्तगू शुरू हो रही थी, वहाँ तकरीबन एक 70-80 हाजी बैठे थे। वहाँ एक गाइड करने वाले बैठे थे। उन्होंने कहा कि हजरत, मैंने कहा कि क्या मेरे भाई, एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट मेरे भाई? आप हज का तरीका समझाएंगे, लेकिन एक हमारी रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट? आप कुरान सुन्नत बोलकर हज का तरीका मत बोलो, हमारे मसलक में क्या है वो बोलो बस आप। अल्लाह हिदायत दे मेरे भाई। कहाँ बैठ के आप बोल रहे हैं? कहाँ बैठ के आप बोल रहे हैं? मस्जिद नबवी में, जहां अल्लाह के नबी ने सहाबा के दिलों में कुरान और सुन्नत घोल 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 के आपने पिलाया, घोल घोल के पिलाया कुरान सुन्नत। ऐसे मकाम पे बैठ के आप बोल रहे, अल्लाह हिदायत दे, आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक गाइड करो ना को मौलाना हजरत, हमारे मसलक में क्या है वो बोलो बस। अब कैसे जी लोगों की इस्लाह होगी? कैसे लोगों की इस्लाह? अरे इमाम साहब को देखिए, अल्लाह आपकी कब्र को नूर से भर दे। आपने क्या कहा? अगर कोई सही हदीस है, मेरा मजहब है वो मेरा मसलक है वो। अगर मेरी कोई बात कुरान के खिलाफ हो, सुन्नत के खिलाफ हो,
मेरी बात को तुम अहमियत ना देना, मेरी बात को अहमियत ना देना, मेरी बात को अहमियत ना देना। आज ये जज्बा है दोस्तों हमारे पास, यही फिक्र तो हम पेश करना चाहते हैं। अरे चले तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, दूसरे इमाम देखिए इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, आपने क्या फरमाया जानते? इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने कहा इन्नमा अना बशर नान वरुमनिदन नान वरुमनिदन उख्तिउ औसीब उख्तिउ औसीब, மசாயில்களை உங்களுக்கு மத்தியில் எடுத்து வைப்பதில் நான் சஹீஹாகவும் இருக்கலாம், நான் தவறிலும் இருக்கலாம். என்னுடைய கருத்து சஹீஹாகவும் இருக்கலாம், என்னுடைய கருத்து தவறாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் ஆனால் ஃபகுல்லு மா வாஃபகல் கிதாப வஸ்ஸுன்னஹ் ஃபகுது வகுல் மா லம் யுவாஃபிகில் கிதாப வஸ்ஸுன்னஹ் ஃபத்ருக்கு. அல்லாஹு அக்பர். என்னுடைய எந்த கருத்து ஒப்பிட்டு பாருங்கள். அல்லாஹு அக்பர். என்ன கூறுகின்றார்கள் இமாம் மாலிக் ரஹிமஹுல்லாஹ்? என்னுடைய கருத்து குர்ஆன் சுன்னாவுடைய கருத்து, அதை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். அது சமமாக இருந்தால் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதில் ஏதாவது ஒரு முரண்பாடு இருந்தால் அல்லாஹ்விற்காக என்னுடைய கருத்தை நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள், குர்ஆன் சுன்னாவுடைய கருத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவர்தான் மாலிகி, அவர்தான் ஹனஃபி. ஹனஃபி யார்? மாலிகி யார்? யார் முற்றிலும் குர்ஆன் சுன்னாவிற்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் ஹனஃபி, அவர்கள்தான் ஷாஃபிஈ, அவர்கள்தான் மாலிகி, அவர்கள்தான் ஹம்பலி, அவர்கள்தான் அஹ்லே ஹதீஸ். நான் ஒரு மனிதன், நான் மார்க்க ரீதியாக ஒரு மஸ்அலாவில் இது ஜாயிஸ், இது நாஜாயிஸ், இது அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம், இது அனுமதிக்கப்படாத ஒரு விஷயம் என்று நான் கூறினால் ஃபன்சுரு ஃபீ ராயி, என்னுடைய அந்த கருத்தில் என்னுடைய அந்த கருத்தை நீங்கள் ஆய்வு செய்யுங்கள், ஆய்வு செய்யுங்கள், ஆய்வு செய்யுங்கள். फॉर एग्जाम्पल दुनिया के मसले में हम क्या करते, ये बहुत लॉजिक है। दुनिया के मसले में हम ऐसे ही ले लेते क्या? आपका नाम क्या मेरे भाई? आपके पीछे उमर फैजान। फैजान साहब को एक मोबाइल लेना है। खैर आप तो किताबें लेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत मिसाल दे रहे हैं बस। मोबाइल लेना हो तो क्या करते हैं? दुकान में जाको मोबाइल हो दियो भाई लेकर आते क्या? खत्म मसला। मोबाइल लेने से पहले कितना सोचते आप? बाजू बैठे ना उनसे पूछते, सामने बैठे ना उनसे पूछते, मजलिस में नो बोले वहां बैठे हैं देखो उनको मोबाइल के बारे में जबरदस्त नॉलेज है उनको, मजलिस के फौरन बाद जाकर भैया एक मोबाइल लेना है मुझे, वो मोबाइल अच्छा फीचर्स कैसे हैं उसके, पूछते नहीं पूछते आप? आपका पूरा जहन काम करता मजलिस में बैठ खाली वो इशारा करे। क्या नाम आपका? क्या है? शरीफ साहब। अल्लाह आपको हमेशा शरीफ रखे माशाअल्लाह। तो शरीफ साहब क्या बोले फैजान साहब को, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला भाई, बारकल्लाह भाई। बस ऐसी मिसाल दे रहा हूँ मैं। उन्होंने आहिस्ता शरीफ जो है फैजान को बोले अब्दुल्ला बैठे हैं देखो वहाँ, लुंगी भी शर्ट पहन लेकर, दाढ़ी है देखो, उनके पास तुम्हें जाओ, जबरदस्त गाइड करेंगे उन्होंने, उनको पूरा मालूम, खाली तुम्हें मोबाइल का नाम बोल दो, पूरे फीचर्स बोल देते उन्होंने। अब उन्होंने फैजान बैठ को जो है मौलाना क्या भाई अभी तक खत्म नहीं हो रहा, क्या वक्त है? 7:10 हुआ है, कब 8 बजेंगे, कब नमाज होगी, कब जाके अब्दुल्ला भाई को पकड़ेंगे? पकड़ को क्या बोलते हैं? मुझे एक मोबाइल लेना है, वीवो फुला, ये फुला, वो फुला, जो भी आपके जहन में है। जब तक अब्दुल्ला भाई सर्टिफिकेट नहीं देते तब तक नहीं लेते आप। दीन के बारे में आप छल्लक थे, कौन भी आके दीन के नाम पर कोई बात बोल दिया, हाँ जज़ाकल्लाह खैर, निकल जाते आप। कितना फर्क है देखो दीन और दुनिया में, हमारा मेयार और हमारी सोच। वल्लाही दोस्तों क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास हम? इमाम सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह இரண்டாம் நூற்றாண்டின் மிகச் சிறந்த ஒரு மார்க்க அறிஞர், முஹத்திஸ், அவர் என்ன கூறுகின்றார்? இன்ன ஹாஸல் இல்ம தீனுன் ஃபன்சுரு அம்மன் தாஹுஸூன தீனகும். இந்த மார்க்க விஷயம், இந்த ஹதீஸ், இந்த மார்க்க செய்தி உங்களுடைய தீன், உங்களுடைய இந்த ஹதீஸ், ஹதீஸின் கல்வி, இந்த மார்க்கம், இது உங்களுடைய மார்க்கம். உங்களுடைய மார்க்கத்தை நீங்கள் யாரிடம் பெற்றுக் கொள்கிறீர்கள் அதை நீங்கள் நன்றாக பாருங்கள், ஆய்வு செய்யுங்கள்.
அவருடைய கல்வி எப்படி இருக்கின்றது, ஆய்வு செய்து அதன் பிறகு நீங்கள் கல்வியை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ये जज्बा आना ना मेरे भाई, करेंगे ना इंशाल्लाह, इसके बाद करो आप. इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की नसीहत है. चले तीसरे इमाम कौन? इमाम शाफी रहिमहुल्लाह. आपने क्या कहा जानते हैं? अल्लाहु अकबर. जो बात इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने कही वही बात आपने भी कही, वही अल्फाज, इदा सह्हल हदीस फहुवा मजहबी. अगर कोई हदीस सही हो जाए वो मेरा मसलक है, वो मेरा मसलक है. और आगे आपने जो कहा, इदा वजदतुम फी किताबिल्लाह व सुन्नति रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ मा अक़ूल फत्तबिउल किताब व सुन्नह वत्रुकू कौली. इमाम शाफी रहमहुल्लाह की बात है. आपने क्या कहा? आपने पहले कहा अगर हदीस सही है तो मेरा मजहब है, और आगे कहा अगर तुम अल्लाह की किताब में तलाश करते करते करते, हदीस को खंगालते खंगालते खंगालते, अगर आप कोई ऐसी बात पाते हैं जिसमें मेरी बात के खिलाफ है, अब तुम्हारी जिंदगी की बड़ी आजमाइश, मसलक को मानना, कुरान और सुन्नत को मानना, मसलक को मानना, कुरान सुन्नत को मानना. जिंदगी ऐसे होती हमारी. कामयाब कौन? इमाम ஷாஃபி ரஹிமஹுல்லாஹ் ने कहा फत्तबिउल किताब व सुन्नह, முற்றிலும் நீங்கள் குர்ஆன் சுன்னாவை பின்பற்றுங்கள். வத்ருகு கௌலி, என்னுடைய கருத்தை விட்டு विடுங்கள். कुरान सुन्नत की पैरवी कीजिए और मेरी बात को छोड़ दीजिए. खलास. दीन बहुत आसान है दोस्तों. इन जिन आइम्मा की हम बात कर रहे हैं, जिन आइम्मा का नाम लेकर आज हम बट रहे हैं, इन आइम्मा ने जोड़ने की बात कही. अल्लाह अकबर. इन आइम्मा ने अल्लाह की कसम कभी तोड़ने की बात नहीं कही. पूरी हिस्ट्री कंगाल लीजिए आप. आज अल्लाह हिदायत दे, इन्हीं का नाम लेकर हम बटे हुए हैं. ये अलग, वो अलग, ये अलग, हम अलग. कभी इन्होंने बांटने की बात नहीं. क्यों? ये कुरान और सुन्नत पे कायम थे, ये कुरान और सुन्नत पे कायम थे. अल्लाह गवाह है, हर इमाम की जिंदगी पढ़िए, वो कुरान और सुन्नत पे कायम थे. इसीलिए सुबहान अल्लाह, अल्लाह उनसे राजी हुआ, उनके फिक़्ह को अल्लाह ने मकबूलियत दी. सब कुछ हमने लिया, इनके मनहज को हमने लिया नहीं. इनका कोई कौल, इनकी कोई बात उन्होंने अपनी समझ पर बयान कर दिया. आप जानते, हिस्ट्री पढ़िएगा ना, आपके दौर में हदीस का ज्यादा रवाज था, बाद में मुहद्दिसीन पैदा हुए, बहुत ज्यादा हदीस का इल्म फैला, ये सब हम जानते हैं. अगर आने वाली उम्मत आपको ये बताए कि आपकी वो राय, உங்களுடைய அந்த கருத்து நீங்கள் குர்ஆன் சுன்னாவோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் அது முரண்பாடாக இருக்கின்றது என்றால், அதை நீங்கள் விட்டு விடுவதற்கு உங்களுடைய ஈமான் இருக்கின்றதா? நான்காவது இமாம் யார்? அஹ்மத் இப்னு ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லாஹ். இவர்கள் என்ன கூறினார்கள் என்று தெரியுமா? அல்லாஹு அக்பர். இவர்கள் கூறினார்கள், லா துகல்லிதுனி வலா துகல்லித் மாலிகா வலா துகல்லித் அஷ்ஷாஃபிஈய்யா வலா துகல்லித் அல்-அவ்ஸாஇ வலா துகல்லித் அஸ்-ஸௌரி பல் குஸ் மின் ஹைசு அகஸு. அல்லாஹு அக்பர். இமாம் அஹ்மத் இப்னு ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறினார்கள், நீங்கள் என்னை கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றாதீர்கள், நீங்கள் என்னை கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றாதீர்கள். மார்க்க விஷயங்களை பின்பற்றுவதில் நாம் எப்படி பின்பற்றுகின்றோம்? இப்படி இல்லையா? உலக விஷயத்தில் क्या है? दीन दुनिया का मसला आता है, पूरी आंख आपकी खुली रहती, पूरी एचडी में देखते हैं आप. एचडी सबसे हाई क्वालिटी, मुझे नहीं मालूम एचडी की सबसे हाई क्वालिटी कितनी है करके. कितनी है? 1008 है क्या? एचडी की पूरी क्वालिटी में देखते हैं आप. दुनिया का मसला ऐसा, थोड़ी धूल भी आना नहीं, थोड़ी धूल भी आना नहीं. और दीन के मसले में सब कुछ रहता, ऐसे जाते रहते आप. और आप थोड़ी देर रुकिए तो आपके जिस्म में सिर्फ किताब सुन्नत का असर नहीं, बिदात का असर रहता, गलत रस्म रवाज का असर रहता,
औरों की तहजीब रहती, औरों की नक्काली रहती, पूरी धूल और गंदगी रहती आपकी जिस्म में। इसीलिए अल्लाह के बंदो, चलते हुए हर चीज झटक के चलो, बिदात को झटको, शिर्क को झटको, गलत रस्म को झटको, है कि नहीं? तब चलकर आप देखो माशाल्लाह बड़े पाकीज़ा रहेंगे आप। आपका लिबास बड़ा ही बज़ाहिर अच्छा ना हो, अल्लाह के पास बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। जन्नत का लिबास पहनाएंगे अल्लाह आपको इंशाल्लाह, जन्नत का लिबास पहनाएंगे आपको। कब होगा ये? ऐसे नहीं होता, ऐसे आंख बंद करके चलना नहीं, हमें आंख खुली रख के चलना। ये दीन है, मजाक नहीं है। दीन के मामले में मजाक, दुनिया के मामले में बड़े संजीदा हैं आप माशाअल्लाह। आपकी आंखें खुली की खुली हैं आप नहीं। दीन के मसले में आंखें खुली रहना, दुनिया के मसले में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी रहे, आपकी आखिरत भी अच्छी रहे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार। हमेशा दुआ मांगो। हमारी अम्मा कौन, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बोलती हैं, हमेशा हमारे नबी अपनी दुआओं में ये करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह दुनिया में भी आपको अच्छा रखेंगे, दीन के मसले में भी आपको अच्छा रखेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे इमाम देंगे, ऐसे आलिम देंगे आपको, जिनकी रोशनी में इंशाअल्लाह अपने दीन को और अपनी आखिरत को बेहतर बना लेंगे इंशाअल्लाह। तो क्या फरमाया इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह ने, நீங்கள் என்னை கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றாதீர்கள், இமாமு மாலிகை நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள், இமாமு ஷாஃபிஈயை நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள், இமாமு அவுசாயியை நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள், இமாமு சுஃபியான் அஸ்-சௌரியை நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள். யாரை பின்பற்ற வேண்டும்? பல் ஹுஸ் மின் ஹைசு அகஸு. இந்த உலமாக்கள், இந்த ஐம்மாக்கள், இந்த மார்க்க அறிஞர்கள் எங்கிருந்து மார்க்கத்தை இவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்களோ அங்கிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அல்லாஹு அக்பர். இதுதான் ஜி, இதுதான் மன்ஹஜ். மக்கள் மன்ஹஜை பற்றி கேட்கின்றார்கள். அஹ்லுல் ஹதீஸுடைய மன்ஹஜ் என்ன? அஹ்லுல் ஹதீஸுடைய மன்ஹஜ் இதுதான். நாம் இந்த மார்க்கத்தை கண்மூடித்தனமாக மார்க்க விஷயத்தில் யாரையும் நாம் பின்பற்ற மாட்டோம். குர்ஆன் சுன்னாவின் அடிப்படையில் மார்க்க அறிஞர்களை நாம் கண்ணியப்படுத்துவோம். அவர்களுடைய கருத்து குர்ஆன் சுன்னாவிற்கு முரண்பாடாக இருந்தால் நாம் அவர்களுடைய கருத்திற்கு முக்கியத்துவத்தை நாம் கொடுக்க மாட்டோம். குர்ஆன் சுன்னாவின் அடிப்படையில் யாருடைய கருத்து இருக்கின்றதோ அந்த கருத்திற்கு தான் நாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். மன்ஹஜுனா அல் கிதாபு வஸ் சுன்னah ஃபீ ஸௌஇ ஃபஹ்மி ஸலஃபி ஸாலிஹ். மன்ஹஜுனா அல் கிதாபு வஸ் சுன்னah ஃபீ ஸௌஇ ஃபஹ்மி ஸலஃபி ஸாலிஹ். நம்முடைய கொள்கை என்ன? நம்முடைய மன்ஹஜ் என்ன? அல் கிதாப் வஸ் சுன்னah, குர்ஆன் மற்றும் சுன்னா. யாருடைய அடிப்படையில்? உங்களுடைய மனோ இச்சையின் அடிப்படையிலா? உங்களுடைய தவறான கலாச்சாரங்களின் அடிப்படையிலா? வல்லாஹி கிடையாது. யாருடைய அடிப்படையில்? உங்களுடைய மன்ஹஜ் இருக்க வேண்டும், உங்களுடைய குர்ஆன் சுன்னா இருக்க வேண்டும். சலஃபுமார்கள், முன் வாழ்ந்த நல்லடியார்கள், அவர்கள் எப்படி இந்த மார்க்கத்தை புரிந்து கொண்டார்களோ அப்படி நாம் புரிந்து கொள்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். இமாம் அபூ ஹனீஃபா, இமாம் மாலிக், இமாம் ஷாஃபிஈ, இமாம் அஹ்மத் ரஹிமஹுமுல்லாஹு ஜமீஅன். புரிகின்றதா உங்களுக்கு? இது உண்மை जी, ये हकीकत है। अगर हमने अपनी जिंदगी को अल्लाह की कसम इस पर कायम कर लिया ना, वल्लाही हमारे सारे प्रॉब्लम हल होंगे इंशाअल्लाह। आज आसान है दीन, ज्यादा इसमें क्या है, परेशानी नहीं है। लोग समझते बहुत मसला है मौलाना, क्या भी मसला नहीं है मेरे भाई, क्या प्रॉब्लम है बोला आपका? दीन कभी मुश्किल नहीं बनाता कोई प्रॉब्लम। आप जब गलत रास्ता ढूंढते ना, वो गलत रास्ता उस मसले को बड़ा मसला बनाता। साहबा इकराम की जिंदगी पढ़िए, माशाअल्लाह इस सही रास्ते पे थे वो, इस सही रास्ते पे थे वो। फायदा क्या हुआ? माशाअल्लाह हर फितने से बचे रहे हो, आराम से चलते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीन को किताब और सुन्नत की बुनियाद पे हासिल किया। इसीलिए जो सवाल उमूमन आज के दौर में किया जाता है, मौलाना हम कौन सा मजहब फॉलो करना, कौन सा मसलक इख्तियार करना, कौन सा हमारा जो है
यानी मौकिफ और कौन सी राय होनी चाहिए, ये जो बातें हमने बताई, फिर दोबारा जाके सुनिए। आप फिर दोबारा जाके सुनिए, एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, वल्लाही बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। हम क्या हैं और कैसा होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, बस यही। हम क्या हैं फिल वक्त और हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे हैं और कैसे रहना चाहिए, ये इंशाल्लाह सलूशन आपको मिल जाएगा। यहां तक बातें समझ में है आप लोगों को? आई ना इंशाल्लाह। चलिए, वक्त भी मेरा बहुत खत्म होने जा रहा है, क्योंकि एक और मेरे पास टॉपिक है, लेकिन वो टॉपिक ऐसा है कि जो है सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह जज़ा खैर दे, क्योंकि कभी कभार माशाल्लाह आप लोग ऐसे जमा होते हैं, इसलिए सोचा कि अकीदा भी बोलें, मनहज भी बोलें और साथ साथ नमाज और तहारत के मसाइल भी बोलें। ये बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन सुबहान अल्लाह चूंकि मुझे कुछ इस टॉपिक पर जरा खुलकर गुफ्तगू करना था, ओपन टॉक बहुत जरूरी था मेरे लिए, इसलिए मैंने ये बातें रखी। अब रहा मसला नमाज और तहारत का, कुछ बुनियादी बातें मैं आपको बताता हूं। अब माशाल्लाह अकीदा हम मगरिब से पहले मालूम करें, अब मनहज मालूम करें। अब करना क्या? ओढ़ के सो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुवाहिद बन गए मौलाना, हमें पक्के मनहजी बन गए। अब क्या भी नहीं करना हमना, खाली जाके बिस्तर उठा के ओढ़ के सो जाओ, माशाल्लाह खराटे ले लो, मनहजी हो गए आप। ऐसा क्या? नहीं, यहां से जिम्मेदारी बनती हमारी। दोस्तों याद रखना, एक बात मैं बोलता हूं, देखिए, मगरिब से पहले अकीदा है आपके पास, मगरिब के बाद मनहज माशाल्लाह है आपके पास। क्या नहीं है हमारे पास? हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत बिगड़ी हुई है। हम बोलते बहुत, करते बहुत कम, ऐसा है हमारा। लोग क्या देखते मालूम आपको? लोग हमारी अमली जिंदगी को देखते। एक बंदे के पास मनहज नहीं, तौहीद भी नहीं है, लेकिन जबान पे ऐसा जिक्र है ना, जबान पे ऐसी इबादत है ना, लोग उसके पास चले जाते हैं मक्खी की तरह, और वो बंदा आसानी से जो है लोगों को गुमराह कर देता, दीन के नाम पर लोगों को दीन से हटाता। और हमारे पास क्या, बहुत, यानी चाय की दुकान में बैठ के तरावी 8 रकात की 20 रकात की, 8 रकात की 20, ना ये 8 रकात पढ़ता ना वो 20 रकात पढ़ता, ऐसा ना होता। चाय पी लेके मस्त चाय, और एक चाय भाई, जबरदस्त बहस हो रही है। देखो हमारे आलिम साहब जो है 8 रकात बोले, देखो जी हमारे आलिम साहब 20 रकात बोले, और ये माशाल्लाह 5 मिनट का वीडियो दिखाता हूं, सब बैठ के मस्त, चाय खत्म हो गई और एक मलाई मार के चाय दो। अरे भाई तरावी हो रही है रमजान में, आप क्या मसला कर रहे हैं? आप 8 रकात की 20 रकात की, ना इसे 8 रकात की तौफीक मिलती, ना उसे 20 रकात की तौफीक मिलती। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम असल ये है, हमने दीन को सिर्फ ये कॉन्वर्सेशन, ये डिबेट, उसकी हद तक रख दिया हमने दीन को। प्रैक्टिकल लाइफ में मेरी जिंदगी में आए, मौलाना 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़ना की कौन सी मसलक में है कि मौलाना बगैर जमात की भी नमाज होती क्या? घर को बोलो ना, वहां में चले जाता। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आज हमारा हाल ऐसा है दोस्त, बज़ाहिर हम जबान से ये सवाल ना करें, हमारे दिल से ये सवाल आ रहा है, हमारी अमली जिंदगी से यही सवाल आ रहा है, हमें नमाजों से छुटकारा मिल जाए, हमें पाकी सफाई। मौलाना उसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक बोलो ना। अरे नौजवानों, आज के दौर में आपका जानना बहुत जरूरी है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपके इमाम साहब मौजूद हैं, आप अपना प्रॉब्लम लाके पेश करो ना। रात में कुछ मसला हो गया, आपको सुबह उठे देखा कि जो है कुछ आपको मखसूस जगह पर कोई चीज निकली हुई है, आपकी लुंगी जो है भीगी है, मसला आगे पूछो ना अपने इमाम से। गुस्ल कब करना, कब नहीं करना, वजू कब टूटता, कब नहीं टूटता, वजू में फराइज क्या, नमाज कैसे पढ़ना, नमाज में पिलर्स क्या, नमाज में वाजिबात क्या, नमाज में सुन्नतें क्या, वजू में सुन्नतें क्या, तयम्मुम का तरीका क्या, गुस्ल का तरीका क्या, और जनाबत का तरीका, जनाबत से गुस्ल करने का तरीका क्या, और सॉक्स पहने तो उसका तरीका क्या, सफर में जाएंगे तो नमाज पढ़ने का तरीका क्या, ये सब मालूम करो मेरे भाई। मौका है आपके पास, आज मौका है माशाअल्लाह, इल्म है, आज इल्म को फैलाने वाले लोग मौजूद हैं। हमारे पास तो सिर्फ ऐसे ही डिबेट होते खाली, तो सामने वाले को नीचा दिखाना या हमारी ख्वाहिश पे अमल करना नहीं।
हम पैगाम ये देना चाहते हैं, अमल का जज्बा लेकर उठिए, अमल का जज्बा लेकर उठिए। अकीदा है, मनहज है, ये दोनों बेअसर है, क्योंकि हमारी जिंदगी बेअसर है। हकीकत में ये दोनों में वो कशिश नहीं। अकीदा में कशिश, लचक है कि नहीं? ताक्कम बोलते तमिल में उसे, सहीहान கொள்கையில் ஒரு தாக்கம் இருக்கின்றது, இந்த மன்ஹஜில் ஒரு தாக்கம் இருக்கின்றது. அந்த தாக்கம் எங்கே? ஏன் அந்த தாக்கம் கிடையாது? ஏனென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும், இஸ்லாத்தின் பால் அமல் செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வு கிடையாது. बेनमाजी है फिर भी हम मुवाहिद हैं। सफर पे जाते, एक बात मैं आपसे मैं ये करूं, खास मजलिस है, कितने अल्लाह के बंदे सफर में अपने सफर की शुरुआत दुआ से करते बोलो? कितने अल्लाह के बंदे सफर में कुरान सुनते बोलो? कितने अल्लाह के बंदे सफर में नमाज पढ़ते बोलो? देखेंगे हमारा सफर अल्लाह 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 की पनाह। सफर शुरू होते ही कोई नई फिल्म शुरू होती, सफर शुरू होती गाना शुरू होता, और सफर से पहले अपडेट लेते। क्या अपडेट लेते मालूम? मौलाना 4 रकात कब पढ़ना, 2 रकात कब पढ़ना, ये अपडेट नहीं। अब कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, कौन सी फिल्म सबसे जबरदस्त है, कौन सा गाना जबरदस्त है, ये अपडेट लेकर हम निकलते। हम कहां से जी सफर में अल्लाह की हिफाजत होगी? कहां से बोलो घर में बरकतें नाजिल होंगी? कहां से हमारी जिंदगी में बरकत आएगी? ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है दोस्तों। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ऐसा नहीं रहना दोस्तों। माशाल्लाह अकीदा मालूम, मनहज मालूम, हमें अपने अमल से हमें मुतासिर करना लोगों को। लोगों से हमारी एक ही शिकायत है, हमारे बारे में लोगों की एक शिकायत है, हम अमल के बारे में बहुत पीछे हैं। हम बोलते बहुत हैं और करते बहुत कम हैं। हम बोलते बहुत हैं, करते बहुत कम हैं। अल्लामा इकबाल ने कितनी बड़ी बेहतरीन बात फरमाई, सूफी की तरीकत में फकत मस्ती है अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती है गुफ्तार। वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगोपे में, हो जिसके रगोपे में फकत मस्ती है किरदार। हमारे खून में अमल का खून दौड़े, हमारी रगों में अमल का खून दौड़े। ऐसा जज्बा लेकर उठो आप। वल्लाही एक दौर ऐसा आएगा, रमजान का मौका है, वल्लाही दिल यहां नरम होते हैं। यहां पापी भी गुनहगार भी अल्लाह की रहमत से मालामाल होता है इंशाअल्लाह। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं ये जो जमात है इंशाअल्लाह, हमारे नौजवानों की, हजरात की, बच्चों की, ये जमात कम नहीं होगी इंशाअल्लाह, कम नहीं होगी इंशाअल्लाह, बढ़ेगी जरूर इंशाअल्लाह। इस जज्बे से उठो आप कि हम जो बने हैं अपने साथियों को बनाएंगे। घर से इस रास्ते में हमें डांट खानी पड़े, लोगों के ताने सुनने पड़े, घर से लोग हमें बुरा भला कहें। हमारे नबी ऐसे न थे दोस्तों। शायर कहा, दीवाना कहा, पागल कहा, साहिर कहा, जादूगर कहा, झूठा कहा, सब कुछ कहा। अल्लाह के नबी ने कौम के लिए अल्लाह के वास्ते बर्दाश्त किया। आज हम तौहीद पे हैं। आज अल्लाह के नबी अगर ताइफ में बद्दुआ कर देते तो ताइफ की बस्ती तबाह हो जाती, पूरा मक्का तबाह हो जाता, पूरी इंसानियत डूब जाती। अल्लाह के नबी ने कभी ऐसा नहीं किया। उठो फिक्र लेकर, एक तड़प लेकर उठो और अपनी दुआओं में याद रखो, अल्लाह मेरा फलां दोस्त बड़ा अच्छा है अल्लाह, लेकिन हमारी बात नहीं समझ रहा है, हमारा मनहज नहीं समझ रहा है। अल्लाह उसके दिल को मनहज के लिए खोल देना, उसके दिल को कुरान के लिए खोल देना, उसके दिल को आए अल्लाह हदीस के लिए खोल देना। अब दुआ करो दोस्तों, हमारी दुआएं असर करेंगी इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह हम। अल्लाह जज़ा खैर दे आप तमाम को। 7:35 का वक्त दिया गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ां होगी, अब अज़ां होगी इंशाअल्लाह। अज़ां के फौरी बाद आप लोग कुछ सवालात कीजिएगा जो हमारे दर्स से रिलेटेड या आम सवालात, और आखिर में 3 सवाल करेंगे और इनाम लेकर हम दर्स खत्म कर देंगे। 5 मिनट का वक्त होगा, आप वजू करके आएंगे, नमाज पढ़ के निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलिए अज़ां होगी इंशाअल्लाह, अज़ां का जवाब दीजिए। सब ऐसे ही बैठे रहिएगा, अज़ां होगी इंशाअल्लाह, अज़ां का जवाब दीजिए, तब तक आप कुछ सवाल सोच लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।